انسان میں ایک خواہش بڑی شدید رہی ہے اور آج کے انسان میں تو وہ شدید تر ہو گئی ہے۔ وہ خواہش ہے جانے جانے کی خواہش۔ دوسرے مجھے جانے، دوسرے پہچانے، کہیں میں گمنام نہ مر جاؤں۔ جہاں جاؤں لوگوں کو پتا ہو کہ محفل میں کوئی آیا ہے۔ یہ خواہش تم میں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ایک ہے، انسان خود کو نہیں جانتا، خود کو نہیں پہچانتا۔ یہ خود کو نہ جاننے کی وجہ سے جو احساس سے قلت ہے، جو کچھ کم ہونے کا احساس ہے، اس احساس کو مٹاتے ہو اس طرح کہ دوسرے جانے، دوسرے پہچانے، دوسروں میں نام ہو، دھوم ہو۔ انا کی یہ ٹیکنیک ہے، وہ احساس کمتری کا علاج احساس برتری کی شکل میں کرتی ہے۔ دوسرے جانے اس احساس کمتری کی خواہش ہے جو خود کو نہ جاننے سے پیدا ہوئی۔ جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم دوسروں سے ادھار مانگ کر پورا کر لینا چاہتے ہیں۔ لیکن کتنے ہی لوگ جان لیں دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہو، اس سے یہ احساس نہیں مٹ سکتا کہ میں خود کو نہیں جانتا۔ ویسے بھی سوچئے، جو خود کو ہی نہیں جان سکا، جو خود کو ہی نہیں پہچان سکا، وہ دوسروں سے خود کو پہچنوا بھی کیسے سکتا ہے؟ جو خود کے لیے ہی ان نون ہے، وہ دوسروں کے لیے نون ہو بھی جائے تو فرق کیا پڑے گا؟ لوگوں کا اسے جان لینا ایک جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں، مگر جھوٹ بھی کام کرتا ہے۔ جھوٹ کے کام کرنے کا ایک میکینزم ہے۔ ایک جھوٹ جو بہت بولا گیا ہو، وہ جس شخص کے بارے میں بولا جاتا ہے وہ بھی ایک دن اس پر یقین کرنے لگتا ہے۔ انا کے سچ، انا کے جھوٹ، ان میں زیادہ فرق ہوتا نہیں ہے۔ بس جھوٹ زیادہ جھوٹ ہوتا ہے اور جسے تم سچ مان لیتے ہو وہ تھوڑا کم جھوٹ ہوتا ہے۔ تمہارے سچ اور جھوٹ کا بس اتنا سا فرق ہے، جس جھوٹ پر بھروسہ ہو گیا وہ سچ ہو گیا۔ ہٹلر نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا تھا، سچ اور جھوٹ میں زیادہ فرق میں نے تو نہیں دیکھا۔ جھوٹ کو بار بار دہراؤ، سچ سے بھی بڑا سچ ہو جاتا ہے، اور سچ کو دہرانا چھوڑ دو، دھیرے دھیرے وہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہٹلر کی یہ بات کوئی فلسفیانہ تعویل نہیں ہے، خود اس کا اپنا تجربہ ہے۔ اس نے خود کئی جھوٹ بار بار دہرائے جو آخر میں سچ ہو گئے، اور اتنے سچ ہو گئے کہ دوسروں نے ہی نہیں، ہٹلر نے بھی ماننا شروع کر دیا کہ یہ سچ ہے، حالانکہ اس نے جھوٹ سمجھ کر پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ سوچیں نا، کیسے ممکن ہے جرمن قوم جو سائنسی اپروچ رکھتی تھی، ہٹلر کے زمانے سے قبل چند ذہین ترین قوموں میں شمار ہوتی تھی، وہ کیسے اس انتہائی نامعقول اور غیر سائنسی جھوٹ کا شکار ہو گئی کہ جرمن سب سے بیسٹ ہیں؟ بار بار سن کر ہٹلر کی پروپیگنڈا مشین کے سامنے ہار کر ساری جرمن قوم اس دیوانگی کا شکار ہو گئی۔ جھوٹ ایسے ہی سچ بنتے ہیں۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی جھوٹ کو آپ بار بار بولتے رہیں تو ایک دن آتا ہے کہ وہ جھوٹ آپ جھوٹ کہہ کر نہیں بولتے، بلکہ اس کو خود بھی سچ مان کر بولنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا جھوٹ تیار کریں، اسے بار بار لوگوں سے، اپنے جاننے والوں سے بولنا شروع کر دیں، کچھ عرصے بعد آپ کو وہ ہرگز بھی اپنا تراشا ہوا کوئی جھوٹ نہیں لگے گا۔ اسے نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں آٹو سجیشن، اور یہ ایک بہت ہی بڑا ٹول ہے۔ آپ نے کبھی کسی ہیپناٹسٹ کو دیکھا ہے؟ اس کے کام کرنے کے انداز کو دیکھا ہے؟ وہ لوگوں کو نیند کی ایک کیفیت میں لے جاتا ہے، اور انہیں ہدایات دیتا رہتا ہے کہ تم بلی ہو، تم بلی ہو، تم بلی ہو، اور اپنی اس سجیشن کو وہ کسی محرک سے جوڑ دیتا ہے۔ مثلاً وہ کہہ سکتا ہے کہ جیسے ہی میں چٹکی بجاؤں گا تم بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرو گے۔
और हैरत की बात यह है कि वही होता है। सजेशन जो झूठ होती है वो फिर उनका सच बन जाती है। आपने कभी गौर नहीं किया होगा, मगर सोच कर देखिए, आपका नाम आपकी इतनी बड़ी हकीकत कैसे बन गया। आपको बार बार एक नाम से बुलाया गया और फिर इस नाम के साथ एट्रीब्यूट्स लगा लगा कर आपकी एक झूठी शख्सियत बना दी गई। मगर ये झूठ कैसे सच बन जाता है। कोई आकर आपका नाम लेता है, जो फर्ज करें जैद है, और कहता है कि जैद का बिजनेस डूब गया, जैद की लॉटरी निकल आई, जैद का बैंक बैलेंस सिफर हो गया। क्या असर होगा इन फिक्रों का उस शख्स पर जिसने खुद को जैद मान रखा है। बेहद खुशी या बेहद दुख। अब सोचिए, इस शख्स का नाम उसकी जिंदगी से माइनस कर दें, याददाश्त का वो हिस्सा उड़ा दें जहां उसका नाम महफूज है, तो क्या यही फिक्रे फिर उस शख्स पर कोई असर करेंगे? यही कुछ आपकी सारी शनाख्तों के साथ है। एक एक करके उन सब एट्रीब्यूट्स का जायजा लेते जाएं जिनके मजमूए को आप अपना आप कहते हैं। आप यही पहुंचेंगे कि एक झूठ था जिसे आप सच मान कर चले आ रहे हैं। सजेशन बार बार दोहरा कर रियलिटी बना दी गई है। झूठ अगर बहुत बुनियादी नोयत के हों और इतनी बार दोहराए गए हों कि आप ही बन गए हों, तो वो इतनी बड़ी हकीकत बन जाते हैं कि आप सच और झूठ का फैसला भी उसी टूल से करने लगते हैं जिस टूल को बनाने वाले कई झूठ थे। समझो, हमारे जाती सच, हमारे जाती झूठ में बस इतना फर्क होता है, झूठ कम दोहराया गया है, सच ज्यादा दोहराया गया है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं, या मैं भारतीय हूं, या मैं अमेरिकन हूं, तो ये बड़ा सच लगता है। लेकिन आप कहें कि मैं इंसान हूं, बाद में किसी मुल्क का शहरी हूं, तो ये सच बड़ा सच नहीं लगता। चाहे ये जितना भी बड़ा सच हो, मगर कम दोहराए जाने की वजह से अमलन ये बड़ा सच नहीं बन पाता, बल्कि अक्सर तो ऐसा होता है कि ये झूठ ही साबित होता है। इंडिया पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, पाकिस्तानी अमरीकियों से नफरत करते हैं, भारतीय चीनियों से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने ये झूठ ज्यादा बार दोहराया गया है कि वो पाकिस्तानी, भारतीय, अमरीकी या चीनी है, और ये झूठ कम दोहराया गया है कि वो पहले इंसान है। अपनी बुनियादी फितरत में दोनों ही झूठ हैं, मगर एक बार बार दोहरा कर बड़ा सच बन गया और एक कम दोहर कर छोटा सच रह गया, जिसके साथ आप ज्यादा आइडेंटिफाई हो गए। वो फिर झूठ नहीं रहता, वो फिर आप बन जाता है, फिर वो आपकी जिंदगी मौत का मसला बन जाता है। दुनिया में लाखों कारोबार डूबते हैं, आपको कुछ नहीं होता, मगर आपका कारोबार डूब जाए तो दिल डूब जाता है। दुनिया में लाखों लोग मरते हैं, आपको कुछ नहीं होता, मगर कोई करीबी मर जाए तो लगता है जिंदगी बेमानी हो गई। फर्क क्या है? बस आइडेंटिफिकेशन का। और याद रखें, आइडेंटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ झूठ के साथ ही होती है, उस झूठ के साथ जो बार बार आप दोहराते हैं। इसलिए सूफी कहता है कि तुम्हारी मैं झूठ है, तुम्हारी अना झूठ है, क्योंकि अना बुनियादी तौर पर क्या है? वो झूठ जो तुमने बार बार सुनकर खुद से उसे नथी कर दिया है। इंसानों के लिए सच का बस एक ही पैमाना है कि वो कितना दोहराया गया है। इसीलिए तुमने कभी नोट किया होगा कि पुराने झूठ हम जल्द मान लेते हैं, नया सच भी हो तो मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास सच का मेयार ही एक है, कितना दोहराया गया। मगर एक बात याद रखना, झूठ हजारों सालों से भी दोहर रहा हो वो सच नहीं हो जाता। तुम अपनी अना को हजारों सदियों से दोहरा रहे हो, मगर क्या अना सच हो पाई है? नहीं। मौत आती है, वो सब मिटा देती है जिसको तुमने सच मानकर, हकीकत मानकर उससे चिमटे थे। और सच को चाहे सदियों में एक बार भी कहा जाए, वो सच ही रहता है। देखते नहीं हो नबियों को, सूफियों को, फकीरों को, सुनते हो उनकी बातों को, कैसे दिल में उतर जाती हैं और तुम्हें बताती हैं कि ये सच है। चाहे ये बातें तुमने पहले कभी भी ना सुनी हो, फिर भी तुम्हारे अंदर कोई मकाम है जो जानता है ये सच है। चाहे ये सच तुम्हारा पर्सनल सच ना भी बन पाए, क्योंकि तुम झूठ के साथ बहुत अरसे से रह रहे हो, सदियों से रह रहे हो,
मगर जब ये सच बोला जाता है तो तुम में कुछ होता है जो मान रहा होता है कि ये सच है। तुम्हारा अनाई दिमाग इस सुने के खिलाफ दलीलें ला रहा होता है, सब चल रहा होता है, मगर कोई मकाम तो होता है तुम्हारे अंदर जिसे पता होता है कि सच है। आज के इंसान को गौर से देखिए, बहुत बारीक बीनी से। इसके सारे सच दोहराए गए झूठ है और कुछ भी नहीं, क्योंकि आज का इंसान सिर्फ और सिर्फ अना है, वो अना जो वो खुद तख्लीक करते हैं और जो मौत के वक्त मिट जाती है। कभी सोचा आपने मौत के वक्त क्या मरता है? क्या वो जिस्म मरता है? वो जिस्म मट्टी से आया था, मट्टी में वापस चला गया। आपने खुराक की शक्ल में सब जमीन से लिया था, लाश की शक्ल में जमीन को लौटा दिया। जिसने इस खुराक को जमा किया था वो इस जमा शुदा जिस्म से पहले भी था और इस जिस्म के मट्टी में मिल जाने के बाद भी होगा। यानी वो कॉन्शियसनेस जो पहले भी थी बाद में भी रहेगी। तो मौत के वक्त क्या मिटता है? मौत के वक्त वो नाम मिटता है जो झूठ था, मगर दोहरा दोहरा कर आपने जिसे सच बना दिया था। मौत के वक्त वो फैक्ट्री, वो मकान, वो गाड़ी मिटती है जिसे आपने मेरी फैक्ट्री, मेरा मकान, मेरी गाड़ी करार दिया था। मतलब ये नहीं कि मकान, फैक्ट्री या गाड़ी मिट जाते हैं, नहीं, वो उसके साथ लगा मेरा मिट जाता है। तो मौत कुछ भी नहीं करती, बस उसको मिटा देती है जो झूठ है, और सच को आप जानते नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि मौत के वक्त मैं मिट जाता हूं, सब मिट जाता है। नहीं, मौत के वक्त आपका झूठ मिट जाता है। और अगर आप सच को जानते हैं तो मौत आपको मिटा नहीं सकती। आप कभी अपनी जिंदगी को गौर से देखो। कुछ बातें हैं जो आप अपने बारे में लोगों को बताते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं सच्चा हूं, मैं बहादुर हूं, मैं खूबसूरत हूं। फिर लोग भी जब इन बातों को दोहराने लगते हैं तो आपको भी भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये मैं हूं। यही अपने और दूसरों के कहे का भरोसा है जो जिंदगी को बेकार कर देता है, जो जिंदगी के तजर्बे को भारी कर देता है। सूफी अपने बारे में दोहराए गए सारे झूठों को अपना सच कहने से इनकार कर देता है। सूफी के सर पर सींग नहीं होते, बस वो ये जान लेता है कि ये दुनिया जो मुझे कह रही है मैं वो नहीं हूं। ये दुनिया बस मेरे बारे में, मेरे और दूसरों के कहे गए झूठों को दोहरा रही है। ये मैं बात कर रहा हूं उस सूफी की, उस फकीर की जो हकीकत में सूफी होता है, ना कि वो सूफी या फकीर जिन्हें आप मान लेते हो। क्योंकि गौर करना, हमारा सूफी भी दोहराए गए चंद फिक्रों और ख्यालों का मजमुआ है और कुछ नहीं। इसलिए देखते हो, कभी ईसाई ट्रेडिशन में पैदा होने वाला, खुद को सूफी कहने वाला मुसलमान सूफी को नहीं मानता। मुस्लिम घर में पैदा होने वाला नाम नेहाद सूफी हिंदू सूफी को नहीं मानेगा। हिंदुओं के सन्यासी मुसलमानों के सूफियों संतों को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे सूफी की डेफिनेशन भी ये चीज मुतय्यन करती है कि किस झूठ को हमने कितना दोहराया है। हकीकी सूफी के पास आप बैठे, वो कभी आपको आपकी इन रिवायतों को दोहराता हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए सूफियों की एक बड़ी अहम और बहुत बुनियादी खसूसियत एक है कि वो ऐलान नहीं करते, दावा नहीं करते फकीर होने का, सूफी होने का। वो इस लफ्ज से भी खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते, क्योंकि इस बात को समझिए, खुद को जाहिर करने, अपना ऐलान करने की जो ख्वाहिश है, वो खुद ये बोल रही है कि दूसरे मुझे जाने, लोग मुझे जाने, लोग मुझे बतौर सूफी जाने, पहचाने कि मैं फकीर हूं, पहुंचा हुआ हूं। जब तुम दावा करते हो, ऐलान करते हो, इसका मतलब क्या होता है? यही ना कि जो आप कह रहे हो लोग वो माने, आपको वैसा जाने, उस नाम से जाने। आपको मेडिकल कॉलेज ने डिग्री दी, उसके लिए एक तकरीब मुनक्किद होती है, बहुत से लोगों को आपने जमा किया, फिर ऐलान हुआ ये बंदा इस डिग्री को मुकम्मल कर चुका। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसे अब डॉक्टर कहा जाए। फिर वो डॉक्टर साहब घर में बड़ी पार्टी करता है या खैरात करता है, लोगों को ऐलान करके बताता है कि ये पार्टी, ये खैरात क्यों हो रही है, ताकि लोग अब उसे मिस्टर ABC ना कहें, बल्कि मिस्टर डॉक्टर AB या C कहें।
एलान में, दावे में बस यही एक हकीकत छुपी होती है कि दूसरे जाने। इसके मुकाबले में तुम किसी सूफी को देखो, वो किसी मुर्शिद के पास रहा, गारों जंगलों सहराओं में भटका और किसी हकीकत तक पहुंच गया, तो वो वापस पलटकर तकरीब मुनक्किद नहीं करेगा कि मैं अब मिस्टर सूफी A.B.S.C हूँ, या मुझे अब फकीर A या फकीर B.C कहो। सूफी कभी दावा नहीं करता, ऐलान नहीं करता, क्योंकि वो भी अगर ऐलान करेगा तो मतलब क्या होगा? मतलब यही कि चाह रहा है कि दूसरे उसे जाने और दूसरे उसे इस टाइटल से जाने। दूसरे जाने, ये ख्वाहिश ही तब पैदा होती है जब इंसान खुद को ना जानता हो। और सूफी अगर ये ऐलान कर रहा है कि मुझे बतौर सूफी जानो, तो मतलब क्या हुआ? वो भी खुद को जान नहीं सका, और जो खुद को नहीं जान सका वो न सूफी न फकीर, वो ढोंग है। और तुम्हारी दुनिया का अलमिया है कि यहाँ सूफी और फकीर कम, ढोंगी ज्यादा है। दूसरा मुझे जाने मैं कौन हूँ, ये ख्वाहिश पट्टी है जो तुम अपना कोई घाव छुपाने के लिए लपेट लेते हो। ये ख्वाहिश जहल है। सोचे ना, कोई खुद को फकीर समझता हो, सूफी कहता हो, और फिर ऐसे लोगों से ये सुनने के लिए बेचैन हो कि उसे सूफी कहें जो खुद को ही नहीं जानते। इससे उसे क्या मिलेगा? हाँ, एक बात को मगर समझो, सूफी फकीर संत खुद को जाहिर नहीं करते, खुद के सूफी फकीर संत होने का ऐलान नहीं करते, दावा नहीं करते, मगर इसका हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं कि वो इजहार भी नहीं करते, वो जाहिर भी नहीं होते। होना एक अलग चीज है। होना एक ऐसी चीज है कि वो खुद ब खुद अपना इजहार करता है। सूफी सिर्फ अपने सूफी होने का ऐलान नहीं करता, जाहिर तो वो होकर ही रहता है, छुप तो वो सकता ही नहीं। फूल फूल बन जाए तो खुशबू उसको जाहिर कर ही देती है। सूरज तुलू हो जाए तो रोशनी की किरणें खुद फैल कर उसका होना जाहिर कर देती है। वो जाहिर होते हैं मगर वो इजहार की कोशिश नहीं करते, दावा ऐलान नहीं करते, तकरीब का इनकाद नहीं करते, ये ख्वाहिश नहीं पालते। इसलिए नहीं कि दावा ना करना उनके लिए जरूरी है, बल्कि इसलिए कि तुम जो हो वो हो गए, इसमें ऐलान क्या करना? ऐलान तो होता है इस बात का कि आप अंदर तो वैसे नहीं हो और आप ये बात जानते हो, मगर बाहर वैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं। सूफी का मतलब बस इतना है कि वो हो जाना जो वो है, बार बार के दोहराए गए झूठों को सच मानकर जीने से आजाद हो जाना। सूरज सूरज होकर ऐलान नहीं करता, फूल खिलकर फूल होने का दावा थोड़ी करता है। सूरज है, फूल है, और उनके ऐलान के बगैर दुनिया जानती है कि वो हैं। सूफी भी ऐसा ही होता है, फकीर का भी यही बर्ताव होता है, संत का भी यही रास्ता होता है। वो सूफी होने का ऐलान नहीं करता, दावा नहीं करता, खुद को सूफी स्टैब्लिश कराने की कोशिश नहीं करता। दूसरे उसको सूफी जाने, फकीर पहचाने, संत माने, ये ख्वाहिशें नहीं पालता, मगर फिर भी वो जाहिर होता है। बल्कि वही ही जाहिर हो सकता है कि जिसको अपने होने का ऐलान ना करना पड़े, दावा ना करना पड़े। जो ऐलान कर रहा है, जो दावे कर रहा है जान जाना, वो सूफी संत फकीर नहीं है। उसने अभी जाना ही नहीं है अना के काम करने के तरीकों को। वो अब भी अना का गुलाम है, वो अब भी खुद को नहीं जान पाया, क्योंकि जो खुद को जान लेता है फिर उसे ये परवाह ही नहीं रहती कि दूसरे उसे जाने। और उनके जान लेने से फर्क ही क्या पड़ता है कि जो खुद को ही नहीं जानता।